Hello students, welcome in HVGK Hub. From today, we are going to start our computer series. For any query, dots, PDF notes or crash course, you can consult our professionals on the following WhatsApp number 82787 Yes students, the expert in anything was once a beginner. Keep this in mind and start learning. Let's begin. Today we will start with Microsoft Office, and in Microsoft Office we will discuss Microsoft Word. So let's begin. What is Microsoft Office? It's a collection of softwares based on specific purpose and mainly used in office work. ये एक सॉफ्टवेयर की कलेक्शन होती है जिसे ऑफिस वर्क के लिए मेनली यूज़ किया जाता है और स्पेसिफिक पर्सन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, पर्पस के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया जाता है. Microsoft Office was developed by Microsoft company in 1988. There are many packages of Microsoft Office. For example, MS Word, that is word processing software, MS Excel, spreadsheet software, MS PowerPoint, that is presentation software, MS Access, that is database management software, MS Outlook, email client. These all are different packages of MS Office. Today we will discuss first package, that is MS Word or word processing software. What is MS Word or Microsoft Word? It's an application software. ये एक application software है classified under heading word processor. It's also known as word processing application software. It provides us different tools like editing, formatting, printing for documents like poster, report, letter, vouchers, web page, newsletter, etc. So clear? Microsoft Word is an application software or word processor. Next, it's a window-based operating system. Microsoft Office or Microsoft Word is a window-based operating system. Window-based operating system means BICS. आपने सुना होगा BICS. मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलता है. What is BICS? BICS means what you see is what you get. जो आप देखते हो स्क्रीन के ऊपर वही आपको मिलता है. That is BICS. Next, how to start MS Word? MS Word को आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो? There are two methods to start MS Word. First, click on Start button, Run option, Run dialog box, then type bin word, then enter key. Press Enter key. Second method is click Start button, All programs, Microsoft Office, then press Microsoft Office Word 2007, जो भी वर्जन आपके पास अवेलेबल हो. जब भी आप किसी डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है उसका नाम document1.docx आता है. सो document1 इज द नेम ऑफ द फाइल एंड .docx इज अ एक्सटेंशन ऑफ MS Word. सर व्हाट इज .docx? एक्सटेंशंस ऑफ MS Word फाइल. जब भी आप MS Word में किसी फाइल को सेव करते हो तो उसके पीछे नाम लिख कर आता है .docx. फॉर एग्जाम्पल आपने फाइल का नाम रखा है ABC, तो जब भी फाइल सेव होती है तो उसका नाम ऐसे आता है abc.docx या फिर abc.doc. So these are the extensions of MS Word file. Let's see. There are different versions and extensions of MS Word or MS Office. First, MS Office 2003. In MS Office 2003, default extension of MS Word is .doc. इसके बाद जितने भी वर्जन्स आए MS Office के, उनमें MS Word की डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन जो है वो .docx है. MS Office 2007 with .docx, MS Office 2016, which is the latest version, also contain default extension .docx. मीन्स 2007 के बाद जितने भी वर्जन्स आए MS Word के, MS Office के, उनमें MS Word की जो डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन है वो .docx है और इससे पहले जितने भी वर्जन थे उनकी .doc एक्सटेंशन रहती थी. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को मिलता है. नेक्स्ट, वी विल डिस्कस कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? देयर आर मेन 8 कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. फर्स्ट, title bar, then standard toolbar, ribbon,
टैब, रूलर, स्टेटस बार, वर्क एरिया, कर्सर. हम वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे. लेट्स सी. दिस इज टाइटल बार, देन रूलर, हेल्प, क्विक एक्सेस टूल बार, फाइल टैब, रिबन, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, then status bar, document area, view buttons, zoom control, and this is cursor. These all are components of MS Word. So let's begin. First component of MS Word is title bar. Title bar is present. The topmost line on the screen is represents title bar. For as we can see in this picture, document 1 Microsoft Word. This is title bar. Title bar displays name of the application and name of the file. Here document 1 represents name of the file and Microsoft Word displays name of the application. For example, आपने MS Excel ओपन किया हुआ या फिर PowerPoint ओपन किया है तो वहाँ आपका name of the file document 1 Microsoft Excel for Excel and Microsoft PowerPoint for PowerPoint. So title bar represents name of the file as well name of the application. इसके अलावा title bar contains 3 control buttons. These are 3 control buttons. First one is a minimize button. Minimize button में आप क्या कर सकते हैं, विंडो का साइज जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन वर्ड जो है वो स्टिल एक्टिव रहता है. Second button, this one, second one, middle one, this is to restore or maximize button, brings Word's window to the maximum original size. Then last one is a close button, close the Word window. अगर आप Word window को close करना चाहते हो तो आप last button, this cross one, इससे आप close कर सकते हो. This is close button. So these are the control buttons of title bar. Next is a standard toolbar. Standard toolbar. Standard toolbar displays the symbol for the common operations like open, print, save. This is standard toolbar. Next one is a ribbon. Next component is a ribbon. Ribbon क्या रहता है आपका? It's a set of tools and commands. Ribbon screen के top रीजन में प्रेजेंट रहता है. बिलो टाइटल बार इज अ रिबन. रिबन कंटेन्स सेट ऑफ टैब्स. दिस इज रिबन एंड इट कंटेन्स सेट ऑफ टैब्स. सो व्हाट आर टैब्स? टैब्स आर द बटन्स ऑन द रिबन with the help of which you can edit characters, text and layouts. So there are 7 tabs on a ribbon in MS Word. First one is the Home tab. This is first one, Home tab. Home tab consists of 5 groups. Clipboard, first one is a clipboard. Then slides, font. अगर आप Excel के ऊपर काम कर रहे हो then slides. अगर आप MS Word के ऊपर काम कर रहे हैं, we are talking about MS Word. In case of MS Word, Home tab contains clipboard, font, paragraph, styles and editing. There are 5 groups in Home tab. First, clipboard. Clipboard contains cut, copy, paste options. आप किसी कोई चीज़ कट करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट में से तो आप कट ऑप्शन क्लिक कर सकते हो. कॉपी करना चाहते हो देन कॉपी. इनके लिए आपके पास शॉर्टकट कीज़ भी रहती हैं, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे. पेस्ट, आपने कोई सेम डाटा आप रिपीट करना चाहते हो तो उसको आप कॉपी करके अदर पोजीशन के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द सेकेंड वन इज द फॉन्ट. फॉन्ट में आप फॉन्ट साइज, कलर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं. देन पैराग्राफ में आपको बुलेट्स, नंबरिंग, अलाइनमेंट से मिलती हैं जिससे आप बुलेट्स को चेंज कर सकते हो, नंबरिंग चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो पेज की. नेक्स्ट वन इज अ स्टाइल्स एंड एडिटिंग. एडिटिंग में आप फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं. लास्ट वन इज द एडिटिंग, दैट इज फाइंड एंड रिप्लेस. अगर आप किसी चीज़ को फाइंड करना चाहते हो पेज में या फिर किसी चीज़ को रिप्लेस करना चाहते हो तो यहाँ जाकर आप डायरेक्टली उस वर्ड को ऐड करके फाइंड और रिप्लेस कर सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट होम टैब. नेक्स्ट टैब इज द सेकेंड वन इज द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब, विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट टैब, दिस कंसिस्ट ऑफ 7 ग्रुप्स. फर्स्ट one is the pages. Pages contains
cover page, blank page, page break. Then second one is the table. Second group is the table. टेबल में आप अपनी मर्जी से टेबल ड्रॉ भी कर सकते हैं और ऑलरेडी बने हुए टेबल भी यूज़ कर सकते हैं. देन इलस्ट्रेशन में आपको पिक्चर्स इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है. क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट, चार्ट. देन फोर्थ ग्रुप इज़ द लिंक्स. इन लिंक्स आप हाइपर लिंक ऐड कर सकते हैं, बुक मार्क कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस ऐड कर सकते हैं. देन फिफ्थ ग्रुप इज़ द हेडर एंड फुटर. हेडर एंड फुटर में आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी डेट या नंबरिंग ऐड करना चाहते हो तो आप पेज के टॉप या बॉटम में ऐड कर सकते हो. आप अपना नाम भी पेज के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर लाना चाहते हो तो उसे भी आप हेडर और फुटर में ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द टेक्स्ट. आप कोई टेक्स्ट बीच में ऐड करना चाहते हो उसके लिए आप स्पेसिफिक टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं. डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं. देन लास्ट ग्रुप, सेवंथ ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब इज़ द सिम्बल्स. आप मैथमेटिकल काम कर रहे हो तो उसमें आप इक्वेशंस ऐड कर सकते हो, सिम्बल्स ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्रुप सिम्बल्स. These are the groups of insert tab. First, pages, tables, illustrations, links, header and footer, text, symbols. Clear? Next tab is page layout tab. Page layout tab contains 5 groups. First is the themes. In themes you have different, for example अगर आप slides में काम कर रहे हो तो आपको different slide डिज़ाइंस मिलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ अ पेज सेटअप. पेज सेटअप में आप पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप सेट कर सकते हैं. पेज का साइज़ आपको A4 साइज़ चाहिए, A3 साइज़ चाहिए, A1 साइज़ चाहिए, वो आप फिक्स कर सकते हैं. कॉलम्स, आपको कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए सिंगल पेज में, वो सब आप पेज सेटअप में सेट कर सकते हैं. पेज ब्रेक करना चाहते हैं, लाइन नंबरिंग करना चाहते हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ अ पेज बैकग्राउंड. अगर आप पेज के बैकग्राउंड में कलर करना चाहते हैं, बॉर्डर लगाना चाहते हो, वाटरमार्क करना चाहते हो, पेज में बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप पेज बैकग्राउंड में जाकर ये सब चेंज कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज़ अ पैराग्राफ. इन पैराग्राफ आप इंडेंटेशन करना चाहते हो, स्पेसिंग देना चाहते हो लाइंस के बीच में तो वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ द अरेंज. इन अरेंज आप पोजिशनिंग, किसी चीज़ को फ्रंट में लाना चाहते हो, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक. कोई डाटा है या इमेज है उसे आप फ्रंट में लाना चाहते हो या बैक ले जाना चाहते हो तो उसको आप टेक्स्ट के फ्रंट में भी ला सकते हो और बैक में भी रख सकते हैं. देन टेक्स्ट रैपिंग, अलाइनमेंट, ग्रुप, रोटेट, ये सब ऑप्शन आपको अरेंज में मिलते हैं इन पेज लेआउट टैब. नेक्स्ट इज द रेफरेंस टैब. रेफरेंस टैब also includes groups of different buttons. There are 6 groups. First one is the table of contents. In table of contents you can add table of contents, text add कर सकते हैं, update table कर सकते हैं. Then footnotes. Footnotes में आप नया एंड नोट इंसर्ट कर सकते हैं, नेक्स्ट फुटनोट ऐड कर सकते हैं, फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं, नोट शो कर सकते हैं. देन थर्ड वन इज द साइटेशंस एंड बिब्लियोग्राफी. इन साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी आप कोई साइटेशन इंसर्ट कर सकते हैं, आप सोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं. देन आप स्टाइल ऐड कर सकते हैं, बिब्लियोग्राफी ऐड कर सकते हैं. फोर्थ वन इज आप कैप्शंस. इन कैप्शंस यू कैन इंसर्ट कैप्शंस, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, क्रॉस रेफरेंस, अपडेट टेबल. Fifth group is the index. In index you can mark entries. Then sixth one is the table. Next is the mailing tab. In mailing tab there are 5 groups. First create option में आपको n+ मिलेंगे, different labels मिलेंगे. Then second one is the start mail burst. कैसे आप मेल बर्स्ट को स्टार्ट कर सकते हैं. Then उसमें रेसिपिएंट सेलेक्ट कर सकते हैं, रेसिपिएंट की लिस्ट को आप एडिटिंग कर सकते हैं. देन नेक्स्ट वन इज द राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स. इसमें आप मेल राइट कर सकते हैं, उसमें कोई भी फील्ड जो है इंसर्ट कर सकते हैं, लाइक हाईलाइट मेज फील्ड, मर्ज फील्ड्स, एड्रेस ब्लॉक, ग्रीटिंग लाइन्स, इंसर्ट मर्ज फील्ड, रूल्स, मैच फील्ड्स, अपडेट लेवल्स कर सकते हो. नेक्स्ट इज अ फोर्थ ग्रुप इज अ प्रीव्यू रिजल्ट्स. आप रिजल्ट्स का प्रीव्यू देख सकते हैं, फाइंड रेसिपिएंट्स, देन ऑटो चेक फॉर एरर्स. लास्ट वन इज अ फिनिश. लास्ट सा आप मर्ज मेल को फिनिश कर सकते हैं और उसको मर्ज कर सकते हैं. सर मेलिंग फॉर मेल, creating a mail. Next tab is review tab. Review tab contains 6 groups. First one is the proofing. Proofing में क्या रहता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर. फर्स्ट इसमें आपको कमांड मिलती है स्पेलिंग एंड ग्रामर. आप जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उसमें आप स्पेलिंग और ग्रामर को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस कमांड के थ्रू आप वो चेक कर सकते हैं. सेकेंड वन इज द थेसिस. थेसिस में आप सिनोनिम्स सर्च कर सकते हैं किसी भी वर्ड से रिलेटेड. देन थर्ड कमांड इज ट्रांसलेट.
अगर आप अपने डॉक्यूमेंट फाइल को डिफरेंट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो यहाँ जाकर आप ट्रांसलेट कमांड के ऊपर क्लिक करके उसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं. देन सेकेंड ग्रुप अंडर रिव्यू टैब इज कमेंट्स. कमेंट्स में आप न्यू कमेंट ऐड कर सकते हैं. अगर आप किसी वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट कमांड का यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द ट्रैकिंग. ट्रैकिंग में आप मान लो आप अपनी फाइल को या अपने सिस्टम को किसी अन्य यूज़र के साथ शेयर कर रहे हैं तो ट्रैकिंग से आप किसी भी डॉक्यूमेंट में होने वाली एडिटिंग को जान सकते हैं. मान लो सेकंड यूज़र जो है वो किसी डॉक्यूमेंट में कोई एडिटिंग कर रहा है तो जो भी उस डॉक्यूमेंट में चेंज होगा वो वर्ड आपको अलग से दिखा देगा अगर आपने डॉक्यूमेंट में ट्रैकिंग अप्लाई किया हुआ है. क्लियर. फोर्थ ग्रुप इज द चेंजेस. आप डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंज कर रहे हो उसको आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या रिजेक्ट करना चाहते हो तो इस कमांड का यूज़ करके आप उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज द कंपेयर. अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट के एक से ज़्यादा वर्जन्स हैं, मान लो आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट एक से ज़्यादा डिफरेंट वे में अवेलेबल है तो आप उन दो डॉक्यूमेंट को आपस में कंपेयर कर सकते हैं. क्लियर. नेक्स्ट वन इज अ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट. आप डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. आप पासवर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट को में एडिटिंग को लिमिट कर सकते हैं. आप क्या कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं जिससे यूज़र के लिए आप अपने डॉक्यूमेंट को ओनली रीडेबल बना सकते हैं. आफ्टर पासवर्ड नो वन कैन ब्रिंग चेंजेस इन डॉक्यूमेंट. इससे आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेफ रह जाता है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकता है. जैसा आपने प्रोवाइड करवाया होगा वो एज इट इज ही रहेगा, यूज़र केवल उसको रीड कर सकता है. दिस इज़ फॉर प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट लास्ट टैब ऑफ MS Word is View tab. View tab contains 5 groups. First one is a document views. Document views में आप डॉक्यूमेंट को डिफरेंट तरीके से व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं. देयर आर 5 टाइप्स. फर्स्ट वन इज अ प्रिंट लेआउट. प्रिंट लेआउट में प्रिंट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा वैसी ही सेम पिक्चर आपको दिखाई जाती है जैसे जब आप प्रिंट लेआउट के ऊपर क्लिक करते हो. सेकेंड इज फुल स्क्रीन रीडिंग. इसमें डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाता है. देन नेक्स्ट वन इज अ फुल स्क्रीन रीडिंग में साइड स्पेस और टैब्स जो है वो हाइड रहता है. नेक्स्ट इज अ वेब लेआउट. वेब लेआउट डॉक्यूमेंट को वेब पेज की तरह दिखाया जाता है और इसमें साइड स्पेस जो वो हिडन रहता है. जितना भी डॉक्यूमेंट होता है वो एक सिंगल पेज के फॉर्म में आपको विजिबल हो जाता है स्क्रीन के ऊपर. नेक्स्ट इज द आउटलाइन. आउटलाइन व्यू डॉक्यूमेंट एक आउटलाइन की तरह आपको विजिबल होता है. पैराग्राफ ऐसे लिस्ट की जैसे आपको विजिबल होते हैं. नेक्स्ट इज द लास्ट वन ड्राफ्ट व्यू. ड्राफ्ट व्यू में आपको ड्राफ्ट के जैसे ही डॉक्यूमेंट विजिबल होता है. ड्राफ्ट व्यू को एडिट करना ईजी होता है इसमें आप, लेकिन इसमें हेडर और फुटर जो हैं वो हिडन होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट ग्रुप इज द शो एंड हाइड ग्रुप. शो एंड हाइड में आप रूलर को शो करना चाहते हो या हाइड करना चाहते हो. देन ग्रिड लाइन्स, डॉक्यूमेंट मैप, मैसेज बार, थंबनेल्स, ये ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं. थर्ड वन इज द जूम. जूम बाय विद द हेल्प ऑफ जूम यू कैन यूज़ डिफरेंट जूम लेवल. आप अपने पेज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग. वन पेज आपको एक बार स्क्रीन में सिंगल पेज चाहिए, डबल पेज एक साथ चाहिए या पेज विड्थ आपको इंक्रीज डिक्रीज करनी है तो आप जूम ऑप्शन क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं. देन फोर्थ वन इज़ अ विंडो. आप नई विंडो इंसर्ट करना चाहते हो, आप एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हो साथ में किसी और डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करना चाहते हो तो उसमें आप इजीली सफल कर सकते हैं. आप स्क्रीन को स्प्लिट कर सकते हैं 2 पार्ट्स में विद द हेल्प ऑफ विंडो ऑप्शन. आप विंडो के ऊपर क्लिक करके एक साथ एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर सकते हो. क्लियर. नेक्स्ट इज द फिफ्थ ग्रुप इज द मैक्रोज. मैक्रोज अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और आपको सेम लाइन्स जो हैं, मान लो आपके पास 3-4 सेंटेंसेज ऐसे कॉमन हैं जो आपको बार बार रिपीट करने हैं तो आप उनको लिखते टाइम रिकॉर्ड कर सकते हो. मैक्रो में ऑप्शन में आपको रिकॉर्ड करने का ऑप्शन मिलता है. जब भी आप उन वर्ड्स को फर्स्ट टाइम टाइप करने लगें तो आप उनको रिकॉर्ड कर सकते हो और कीबोर्ड से एक शॉर्टकट की इंट्रोड्यूस करके उस वर्डिंग को आप बार बार बिना लिखे ही रिकॉर्ड के ऊपर शॉर्टकट की से आप रिकॉर्ड को स्टार्ट करके वो अपने आप लिख दी जाती है. आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है. क्लियर. So this is all about MS Word. Today we have discussed components of MS Word. Thank you. If you like the video then